Assalamualaikum, girls. This is our lecture number 3 for mathematics, second year, chapter number 4. And today we will start 4.2. And before starting 4.2, we will learn what is meant by translation and rotation of x's. Firstly, let's see what is meant by translation. Girls, you know what is a translatory motion? When all the particles of a body move in straight line, this is called as actually translatory motion. Now, what is translation of x's? Let us consider in this figure that this is our x-axis. This XOY is our simple original plane. Okay, what we have done, we have considered a point O dash in this plane such that the coordinates of this point O dash are H and K. Okay, now from this point O dash we draw two mutual perpendicular axes such that this capital, the new x's are over here, are represented with capital X and capital Y. These new x-axes are parallel to these initially built x-axis, and y-axis are also parallel to the this axis. Now, what is the difference between these two axes? That only the origin has shifted to some new position, whereas the x and y axis are again parallel to the previous one. Okay, so how will we solve it? Let us consider. Let me open the whiteboard and then we will solve it over there. Okay, what we are doing over here, we have originally this small x. Okay, wait. These are the original axis. This is the origin. This is x-axis and this is our y-axis. We have considered a point O dash in this xy plane such that the coordinates of this point O dash are H and K. From this point O dash, we have drawn two x's which are represented as capital X and capital Y. Okay. Over here, we have shifted our origin from point O to point O dash. Okay. X और Y axis पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ हमारा जो origin है वो shift हुआ. Okay. Now, if I consider any point P in this new plane, and I need to find its coordinates. इसके coordinates हम कैसे represent करेंगे? Capital X और capital Y से. ठीक है. Sorry, this is capital Y. अच्छा. Now what I want to do, I want to find the relation between these, the values of this x's and the value of this x's. Means I want to find the value of this capital X in terms of small x. ठीक है. Now let me draw a perpendicular from point P which meets this x-axis at point M. Okay, and we will draw this point downward, जिसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं. It will meet this axis at point N. ठीक है. Okay, now the coordinates of this point P, when this point P is lying in this new coordinate system, it is also lying in this small x o y system ना. जब हमारे पास ये पॉइंट ओ डैश ही हमारा इस प्लेन में लाई करे तो पॉइंट पी भी उसी प्लेन में लाई करेगा. तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये स्मॉल एक्स वाई भी हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले भी होंगे क्योंकि ये दोनों में लाई कर रहा है. ठीक हो गया. अब देखिए जी, अगर यहाँ पे लाई कर रहा है इसका मतलब है ओ से लेकर एम तक की जो वैल्यू है
उसका उसका क्या, हमारे ओ से एम तक की जो वैल्यू है प्रीवियस एक्सिस के अकॉर्डिंग, ओ टू एम की वैल्यू होगी हमारे पास जी स्मॉल एक्स। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ओ डैश से यहाँ तक वाला, ये वाला, ये पोर्शन है जी हमारे पास कैपिटल एक्स का। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है हमारे पास कैपिटल एक्स का। इस पॉइंट ओ से लेकर इस पॉइंट एम तक का जो पोर्शन है सारा, ये है स्मॉल एक्स का। ठीक है, और ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर एच और के हैं, इसका मतलब है कि ओ से लेकर एन तक की जो वैल्यू है उसका कोऑर्डिनेट एच हो गया। ठीक है, उसकी वैल्यू एच हो गई। ओ से एम की वैल्यू एक्स है हमारे पास, देखो फिगर में ओ से एम तक की वैल्यू एक्स है, ओ से एन तक की वैल्यू एच आ रही है। क्यों? क्योंकि ये ओ डैश को हमने डाउनवर्ड किया है, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट हमने फाइंड किया है। ठीक है, और ओ से लेकर जो एम तक की वैल्यू है, सॉरी ओ डैश से एम तक की वैल्यू, ओ डैश से एम तक की वैल्यू जो है दिस इज कैपिटल एक्स। ठीक है, अब अगर मैंने इनका रिलेशन फाइंड करना हो तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू होगी, यहां से देखो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एक्स में से जब मैं एच को माइनस कर दूंगी तो कैपिटल एक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ जीरो से लेकर ओ से लेकर एम तक जो है हमारे पास क्या है, स्मॉल एक्स है। इसमें से अगर मैं ये एच वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो है, यहाँ ओ से लेकर ओ डैश तक का जो एच का पोर्शन है, ये अगर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स माइनस एच। और इसी तरीके से मैं यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू निकालूंगी, स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच। ठीक हो गया। अब अगर तो मुझे y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू देखो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगी, मेरे पास o से लेकर p तक की, o से लेकर p तक, यहाँ तक की जो सारी वैल्यू है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है जी हमारे पास स्मॉल y। ठीक है, o डैश से लेकर, o डैश से लेकर मेरे पास p तक की वैल्यू क्या है जी, o डैश से p तक की वैल्यू है हमारे पास स्मॉल y। ठीक, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारी k की। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने x की वैल्यू फाइंड किया है, हमारे पास कैपिटल Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल Y की वैल्यू आएगी स्मॉल y माइनस k, एंड स्मॉल y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास स्मॉल y की वैल्यू आ गई कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न दीज फोर वैल्यूज, आपको ये चारों वैल्यूज याद होनी चाहिए। हमने करना क्या है इन वैल्यूज से, देखिए जरा। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -6 9, द एक्सेस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट O डैश -3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P रेफर टू न्यू एक्सेस। अब जो देखो अभी हमने ट्रांसलेशन का आर्टिकल किया है, उसमें हमने क्या पढ़ा है, ओ और ओ डैश के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ओ के अकॉर्डिंग स्मॉल एक्स वाई और ओ डैश के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज अभी हमने फाइंड की। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मतलब ट्रांसलेटेड एक्सिस की वैल्यू गिवन हो और हमें कहें कि जी आप ओरिजिनल एक्सिस फाइंड कर लें एच के, तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना हो उसको ट्रांसलेटेड एक्सिस में, तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर -6 9, द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू पॉइंट ओ डैश। एक्सिस को अब हमने ट्रांसलेट कर दिया है -3 2 पे। ट्रांसलेशन जिस पॉइंट पर हुई है वो ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स -3 और 2 है, तो हमने फाइंड क्या करना है, पी को के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं रिलेटिव टू द न्यू एक्सिस, मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ठीक है, जो आपके पास वैल्यूज गिवन है ना -3 और 2, ये एक्चुअली आपके पास एच और के की वैल्यूज गिवन है ना, क्योंकि ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी क्या लिए थे आर्टिकल में, एच के लिए थे।
तो ओ डैश जो -3 2 है, ये आपके पास क्या गिवन वैल्यूज हैं, एच और के की वैल्यूज गिवन है। पी पॉइंट जो है हमारे पास जो ओरिजिनल एक्सिस स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में गिवन था, तो उसके लिए ये -6 और 9 वैल्यू गिवन है। इसका क्या मतलब है कि -6 एक्स की वैल्यू है स्मॉल एक्स की, 9 वैल्यू है स्मॉल वाई की। अब आप रिलेशन लगाएं, रिलेशन क्या है, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स माइनस एच। तो हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, उनकी वैल्यूज फाइंड की तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली कैपिटल वाई का रिलेशन क्या होता है, स्मॉल वाई माइनस के। ठीक है, स्मॉल वाई की वैल्यू 9 है, के की वैल्यू 2 है, इनको सेपरेट किया तो वाई की वैल्यू 7 आ गई। तो ट्रांसलेटेड एक्सिस में इसी पॉइंट की जो वैल्यू है, इसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, वो क्या बन गया, -3 एंड 7। ओके, नाउ आफ्टर दिस एग्जाम्पल come to the first question of the exercise 4.2। ओके, इस क्वेश्चन में हमें देखें, क्वेश्चन क्या है, द टू पॉइंट्स P and O dash are given in small xy coordinate system. Find capital XY coordinates of P refer to translated axis। अब हमें जी ये translated axis given है, O dash मतलब O dash का मतलब है H और K की वैल्यू given है, P हमारे पास given है small xy coordinates में, इसलिए जो P की given वैल्यू है क्वेश्चन में, ये small x और small y की वैल्यू given है। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 की है, सेम उन्हीं लाइंस पे ये चारों पार्ट्स आप लोगों के सॉल्व होंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देख लो मजीद। ये पी एक्स वाई गिवन है, क्योंकि ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में गिवन है, इसलिए ये वैल्यूज भी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज हैं, जो कि हैं 3 and 2। ठीक है, वो डैश की वैल्यूज जो होंगी वो एच के कंसिडर होती हैं, तो वो वैल्यूज हैं जी, एच की वैल्यू 1, वाई के की वैल्यू 3 गिवन है। कैपिटल एक्स फाइंड करना है, उसकी वैल्यू होती है स्मॉल एक्स माइनस एच, फॉर्मूला होता है। स्मॉल एक्स की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, एच की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट पी का। सिमिलरली कैपिटल वाई का फॉर्मूला होता है स्मॉल वाई माइनस के। स्मॉल वाई की वैल्यू गिवन है 2, के की वैल्यू गिवन है 3, तो कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई -1। तो कोऑर्डिनेट बना 2 -1, जो कि पी के कोऑर्डिनेट्स हैं किस में, कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में, ट्रांसलेटेड एक्सिस में। ठीक हो गया गर्ल्स? ओके, अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जबकि पॉइंट हमारे पास होगा कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में और ट्रांसलेशन होने के बाद पॉइंट गिवन है कैपिटल एक्स वाई में, हमने बताना है कि जो इसका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें इसके वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, एग्जांपल देखिए, द कोऑर्डिनेट्स द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू अ पॉइंट ओ डैश 4k। ओ डैश जहां पर लिखा है इसका मतलब है आपको एच और के गिवन है। ठीक है, the coordinates of point P are 2 -3 refer to the new axis। रेफर टू द न्यू एक्सिस का मतलब है कि ये वाली वैल्यू कैपिटल एक्स की वैल्यू 2 गिवन है, कैपिटल वाई की वैल्यू -3 गिवन है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू ओरिजिनल एक्सिस। ओरिजिनल एक्सिस मींस बिफोर ट्रांसलेशन, जो कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है, अब आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू गिवन है, एच के की वैल्यू गिवन है। हमें पता है कि स्मॉल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कैपिटल एक्स प्लस एच की इक्वल होती है। स्मॉल वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कैपिटल वाई प्लस के की इक्वल होती है। अब जब कैपिटल एक्स वाई एच के की वैल्यूज हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए, तो जो हमारे पास 6 वैल्यू स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू 3 आई, तो ये कोऑर्डिनेट्स बने पॉइंट पी के इन द ओरिजिनल एक्सिस स्मॉल एक्स वाई। ठीक हो गया यहाँ तक? यहाँ तक अभी हमारा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 को एक दफा देख लीजिए आप लोग। जी, ये जी क्वेश्चन नंबर 2, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस the xy coordinates axes are translated through point O dash whose coordinates are given in small xy coordinates। The coordinates of P are given in capital XY coordinate system। यानी कि अब हमें गिवन क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू गिवन है और स्मॉल एक्स वाई फाइंड करना है, जबकि ओ डैश एच और के भी गिवन है। ठीक है, सो फॉलोइंग द सेम लाइंस एज वी हैव डन इन एग्जांपल नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 विल बी कंप्लीटेड। नाउ कमिंग बैक टू द आर्टिकल, अभी हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या हुआ था जी, कि सिर्फ जो ओरिजिन है वो शिफ्ट करता है ओरिजिनल एक्सिस से किसी और एक्सिस पर, किसी और पॉइंट पर, सॉरी, लेकिन जो एक्सिस होते हैं
ओरिजिनल स्मॉल एक्स वाई एक्सिस और जो कैपिटल एक्स वाई न्यू ट्रांसलेटेड एक्सिस होते हैं वो आपस में पैरेलली होते हैं, ठीक है। लेकिन जब तो हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस की, इसमें देखें क्या होता है, फोकसिंग ऑन द फिगर, हमारे पास ये ओ, ये एम वाली लाइन जो है ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिनल वाई एक्सिस है। रोटेशन का मतलब होता है जी रोटेट कर रही है कोई बॉडी, कोई कोई चीज जो है किसी एंगल पे मूव कर रही है। हमने क्या किया कि एक्सिस ओरिजिन तो वहीं पे रहा, लेकिन जो हमारे एक्सिस हैं वो ओरिजिनल एक्सिस के कंपैरेटिव एट एन एंगल थीटा मूव कर गए, ठीक है। जब वो किसी एंगल पे मूव कर गए तो अब उनकी वैल्यूज कुछ चेंज हो गई। अब हमने फाइंड करना है कि जो हमारे न्यू एक्सिस हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और जो ओरिजिनल एक्सिस स्मॉल वाई थे, इनका आपस में अब क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ओके, फिगर कैसी है गर्ल्स इसकी जी। हमने क्या किया, ये हमारे ओरिजिनल एक्सिस थे ओ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। न्यू एक्सिस में हमारे पास क्या हो गया कि ओरिजिन तो हमारे पास सेम रहा, लेकिन जो हमारे एक्सिस हैं वो दिस एट एंगल थीटा, ठीक है, ओरिजिनल एक्सिस से एट एंगल थीटा रोटेट कर गए, कैपिटल वाई और ये हो गया जी कैपिटल एक्स। नाउ इफ दिस पॉइंट पी इज लाइंग ओवर हेयर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों होंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी होंगे, ठीक है। हमने इनका आपस में रिलेशन फाइंड करना है। देखो वो हम कैसे करते हैं। व्हाट वी हैव डन, हमने जी ये आर पोजीशन वेक्टर लिया है इस पॉइंट पी का फ्रॉम ओ। पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। इसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये आर लिया हमने। फिर हमने क्या किया, इस आर पॉइंट से एक अपने न्यू एक्सिस पे और एक जो ओरिजिनल एक्सिस थे दोनों पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। जो हमारे न्यू एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ वो ड्रॉ हुआ जी पॉइंट एम डैश पे, और जो ओरिजिनल पे ड्रॉ हुआ है वो हुआ पॉइंट एम पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस P का जो हमने एंगल लिया है विद एक्स एक्सिस, जो ओरिजिनल एक्स एक्सिस है वो उसके साथ हमने ले लिया जी एंगल अल्फा। ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तक का जो एंगल है वो हमने ले लिया एंगल अल्फा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल बन रही है ओ पी एम, एक ट्राइंगल बन रही है ओ पी एम डैश, और दोनों ट्राइंगल्स जो हैं हमारे पास वो हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। एक ट्राइंगल बनी मेरे पास ओ पी एम, एक ट्राइंगल मेरे पास बन रही है ओ पी एम डैश। बोथ हैव द ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए अगर इस ट्राइंगल में ओ पी एम डैश वाली ट्राइंगल में देखो, इसमें जो है हम अगर अपनी बेस की वैल्यू एक्स एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू फाइंड करेंगे दैट विल बी, देखो जब हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते होते हैं कोऑर्डिनेट्स में, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा कॉस थीटा के साथ रिलेट करता है और जो वाई होता है वो हमेशा साइन के साथ रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं अपनी ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करूं ओ पी एम डैश, इस वाली ट्राइंगल में कैपिटल एक्स है ना इसमें, क्योंकि एम डैश तो हमने न्यू वाले एक्सिस पे ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, कैपिटल एक्स एक्चुअली है क्या, कैपिटल एक्स हमारे पास ठहरिए, अच्छा ये देखिए हमारे पास जो ओ एम डैश है ये है ना हमारे पास टोटल एक्स कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होता है आर कॉस थीटा, और थीटा जो इसका है हमारे पास वो किसकी इक्वल होएगा, आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। अल्फा माइनस थीटा कैसे आया, देखिए ये पूरा एंगल अल्फा था,
और ये वाला एंगल थीटा है। मैं सिर्फ ये इंटरनल वाली ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला। तो ये जो इतना सा एंगल अंदर वाला होगा, ये एंगल अल्फा माइनस थीटा हो गया ना। ये हम यहाँ पर भी बना लेते हैं कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल थीटा है। तो जो इतना सा एंगल है, ये हमारे पास आ गया एंगल अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसकी इक्वल हो गया, आर कॉज ऑफ अल्फा माइनस थीटा। सिमिलरली इसका जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो किसकी इक्वल हो रहा है, वो आ रहा है जी हमारे पास m डैश p, क्योंकि परपेंडिकुलर वैल्यू है। m डैश p इज इक्वल्स टू द कैपिटल y कोऑर्डिनेट, दिस इज इक्वल्स टू r साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ठीक हो गया। और जो हमारे पास ट्राइंगल OPM है, अगर ये वाली ट्राइंगल आप लोग देखो, जो OPM ट्राइंगल है, इस वाली ट्राइंगल में इस x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, OPM वाली जो ट्राइंगल है इसका पूरा एंगल जो है ये अल्फा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। देखो ये OPM में ये पूरा एंगल आ रहा है, तो पूरा एंगल हमने क्या लिखा हुआ है, ये अल्फा लिखा हुआ है। तो OPM वाली जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है, एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर कॉज अल्फा, और y की वैल्यू आई हमारे पास आर साइन अल्फा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। अब हम क्या करेंगे, और इस x में कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। वो क्या होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस, सॉरी, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला हम दोनों पे ओपन करेंगे और इसमें जहां पर वैल्यू आ रही है ना, आर कॉज अल्फा आर साइन अल्फा, उस जगह पर हम पुट कर देंगे एक्स और वाई की वैल्यूज। देखिए फिर क्या बनता है। ये देखिए, ये हमारे पास जो हमने ओ डैश एम और एम डैश पी की वैल्यूज जो मैंने अभी आप लोगों को वैल्यूएट करके दिखाई है, इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है, और ट्राइंगल OPM में एक्स वाई की वैल्यूज हैं। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को एक्सपैंड किया, फॉर्मूला ओपन किया। फॉर्मूला ओपन करके ये आ गया। यहाँ पर गर्ल्स थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो वैल्यू, यहाँ पर फॉर्मूला के साथ जो साइन आएगा यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, आप ये देखो आर कॉज अल्फा कहाँ आ रहा है, ये आर कॉज अल्फा आ रहा है, तो आर कॉज अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, स्मॉल एक्स, ठीक। आर साइन अल्फा आ रहा है, आर साइन अल्फा की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, स्मॉल वाई, ठीक हो गया। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो वो ये रिलेशन हो गया, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक ओरिजिनल एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो हम उसको रोटेटेड एक्सिस में उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर रोटेटेड में गिवन है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल में फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का मतलब है, स्मॉल एक्स वाई का मतलब है कि आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू गिवन है 5 एंड 7। हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। एंगल थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा। एक्स की जगह पर क्या वैल्यू आ गई 5, कॉस थीटा की जगह पे आ गई कॉस 30 डिग्री, प्लस वाई साइन थीटा, तो वाई की जगह पे आया 7 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 कॉस 30 की वैल्यूज हमें पता है, वो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले में पुट करके, तो हमारे पास जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है न्यू एक्सिस के, वो आ जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, लुक एट द एग्जांपल नंबर 4, दिस इज बिट इंपॉर्टेंट। द एक्स वाई एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल tan इनवर्स, आर्क tan का मतलब है जी tan इनवर्स 4/3, ठीक है, tan इनवर्स 4/3 lying in the first quadrant. The coordinates of point P refer to the new axis are -1 -7। अब इसका मतलब है कि जो -1 -7 है ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यूज गिवन है, क्योंकि न्यू एक्सिस की वैल्यू गिवन है। हमने फाइंड करना है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यूज, ठीक है। तो लेट P x y be the coordinates of P
रेफर टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। एंगल ऑफ रोटेशन हमें गिवन है tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan इनवर्स थीटा 4/3 का मतलब है, देखो बेटे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है arc tan 4/3। arc tan का मतलब होता है tangent इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक हो गया। अच्छा, तो जब tan इनवर्स की वैल्यू आ गई है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट उधर चला जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट 4/3। ये वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू देखो, ये टेंजेंट की ये वैल्यू कब कहाँ पर होती है, ठीक है। वहां से आपके पास थीटा आ जाएगा, जब आपके पास थीटा आ जाएगा तो आप साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर पाओगे, कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं जो कि अभी हमने फाइंड की थी, जो कि रिलेशन देती हैं कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई वाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, इसमें स्मॉल एक्स वाई फाइंड करना है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यूज गिवन है वो आप इसमें पुट कर दो, तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो इक्वेशन बनी और दो ही अननोन्स हैं एक्स और वाई की, ठीक है। उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जिस मर्जी मेथड से करें, चाहे आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे तो वो जो एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, वाई की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट करोगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपके पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। जब तो हमने ट्रांसलेशन किया था बेटे, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हमने वहां से खुद ही डिराइव कर लिया था ना, स्मॉल एक्स की टर्म्स में भी और कैपिटल एक्स की टर्म्स में भी, लेकिन रोटेशन में आपने एक ही फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। चाहे कैपिटल एक्स की वैल्यू गिवन है, चाहे स्मॉल एक्स की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला आपने यही यूज करना है। अब आप देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 4.2। ये रोटेशन के पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इनको रोटेट किया अबाउट ओरिजिन टू इंडिकेटेड एंगल, एंगल भी हमारे पास गिवन है, और जो न्यू एक्सिस हैं वो गिवन है, सॉरी न्यू एक्सिस हमने फाइंड करने हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है। फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद द गिवन स्मॉल एक्स वाई। गिवन स्मॉल एक्स वाई का मतलब है ये जो पी की वैल्यू 5 गिवन है, ये स्मॉल एक्स की, और ये स्मॉल वाई की वैल्यू गिवन है, एंगल थीटा 45 डिग्री गिवन है, आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, थीटा की वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्योंकि आपको जब वैल्यूज पुट करनी है गर्ल्स, तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों ने उसको, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वरना इस एक्सरसाइज में जो है ना कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, this is question number 4. The xy coordinate axes are rotated about the origin through the indicated angle, and the new axes are, these are the new axes, capital X capital Y. Find the small xy coordinates of P with the given capital XY coordinates. अब जो आपके पास ये वैल्यू गिवन है -5 और 3, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है, ये वैल्यूज आपके पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आपने फाइंड करना है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 4 की थी, सेम उन्हीं लाइंस पे आप ये करेंगे। पहले आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है पहले फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करो, उसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशंस बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। जो दो इक्वेशंस बनेंगी और दो ही अननोन है, फर्स्ट ईयर में जो पूरा 4th चैप्टर किया है आपने इक्वेशन सोल्यूशंस का ही किया है ना वो, तो दो इक्वेशंस होंगी, दो अननोन्स होंगे, सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके एक वेरिएबल काट दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी एक्स या वाई में से किसी एक की, और बैक सब्स्टिट्यूट करोगे तो स्मॉल एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है गर्ल्स। So we have done with this exercise 4.2 and we have completed our lecture number 3. अब इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे 4.3 का आर्टिकल इंशाल्लाह। ओके गर्ल्स, टेक केयर देन।